बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ना यहाँ पे काफ़ी स्कैटर्ड सा लिखा हुआ है, सो आई हाईलाइट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The peptic ulcer is an excoriated area of the stomach or the intestinal mucosa that is caused principally by the digestive action of the digestive juice or the upper intestinal secretions. ठीक है जी. तो आपका म्यूकोजा जो स्टमक म्यूकोजा है दैट गेट्स एक्सकोरिएटेड, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ योर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, या फिर आपके अपर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस. अब हमने देखना है कि व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट्स, ठीक है, ऑफ पेप्टिक अल्सर. ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि दैट इज़ द फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द पाइलोरिस. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि पेप्टिक अल्सर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द एंट्रल एंड ऑफ द स्टमक. ठीक है, इन द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस. ठीक है, अ टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल अल्सर ऑफन अकर्स whenever a surgical opening such as gastrojejunostomy has been made between the stomach and the jejunum of the small intestine. So how many sites we have started? एक हमने पढ़ी, रुकिए, एक हमने साइड पढ़ी कि that is the first few centimeters of the duodenum, the antral end of the lesser curvature of the stomach, the lower end of your esophagus, and there is a marginal ulcer, ठीक है, that occurs along the margins of an abnormal opening that is made between the stomach and some portions of the small intestine. ठीक है, कोई abnormal opening आपने की है during a surgery. Now what are the basic causes? यहाँ पे आपको वो इतनी लंबी स्टोरी सुनाकर they'll just be making you understand कि gastric ulcer तब होता है when there is an imbalance between the gastric juice secretion and the degree of protection that is offered by the gastroduodenal mucosal barrier and the neutralization of the gastric juice by the duodenal juice. यानी कि आपका जो gastric barrier है, ठीक है, वो जो गैस्ट्रिक बैरियर है वो जितनी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू द गैस्ट्रिक जूस और टू द हार्मफुल अफेक्ट ऑफ योर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन. ठीक है, गैस्ट्रिक बैरियर भी और जो बाइकार्बोनेट होती है इन द ड्यूडेनम दैट. ठीक है, सो इफ देर इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एंड द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. आई थिंक यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई थी यहाँ पर जो उन्होंने कंक्लूजन बताया. देयरफॉर पेप्टिक अल्सर कैन बी कॉज्ड बाय आइदर ऑफ द टू वेज: excessive secretion of acid and pepsin by the gastric mucosa and diminished ability of the gastroduodenal mucosal barrier to protect against the digestive properties of the stomach acid pepsin secretion. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बात की about the gastroduodenal mucosal barrier because the barrier is not only offered in the stomach, there's some barrier in the duodenum also. तो अगर आपकी जो सिक्रीशन है और जो प्रोटेक्शन है उनके बीच में they're not equivalent to one another. That's actually what they're trying to say. ठीक है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे क्या क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. लेट मी रेज दिस. व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स? ठीक है, ये आपके गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल बैरियर, ये क्या क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स ऑफर करता है? तो देयर इज़ बेसिकली म्यूकस. यहाँ पे उन्होंने लिखा है दैट देयर इज़ अल्कलिनिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस. ठीक है, एंड आई saw there was mucus here. Wait, let me see. Let's erase this. Yes. यहाँ पे इन्होंने कहा है we have got a highly alkaline mucus. ठीक है, that is produced by the Brunner's glands and the deep pyloric glands that secrete mainly mucus. So mucus that is basically secreted by the mucus glands and the bicarbonate. The bicarbonate, ठीक है ना, of the pancreatic juice and of the bile. And the reflex inhibition of the acid secretion due to acid in the duodenum. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि when excess acid enters the duodenum, वो inhibit कर देता है आपकी gastric secretions को and the peristalsis in the stomach. ठीक है, और इसके बाद उसने बताया है that we have a hormone that is secretin. ठीक है, that is produced from your intestinal mucosa and that is secreted in response to acid and that causes the pancreas to secrete bicarbonate. ठीक है, सो व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ?
हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी अबाउट पेप्टिक अल्सर दैट इट्स बेसिकली एन एक्सकोरिएटेड एरिया ऑफ द म्यूकोसा दैट इज कॉज्ड बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द साइट्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो पाइलोरस वाला एरिया है दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ योर ड्यूटेनम, द लेसर कर्वेचर ऑफ योर एंट्रल एंड ऑफ योर स्टमक, ठीक है, या लेसर कर्वेचर, ठीक है, द एंट्रल एंड ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, देन द लोअर एंड ऑफ योर एसोफिगस, एंड देन देयर इज अ मार्जिनल अल्सर जो तब डेवलप होता है व्हेन देन एबनॉर्मल ओपनिंग इज मेड बिटवीन द स्टमक एंड सम पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज इन गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, ठीक है। फिर हमने बेसिक कॉज बेसिकली यहाँ पे पढ़ा कि द बेसिक कॉज इज़ बेसिकली जब आपका पेप्सिन दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड द प्रोटेक्शन दैट इज़ ऑफर्ड बाय द गैस्ट्रोड्यूटेनल बैरियर, दे डू नॉट कॉम्पनसेट वन अनदर, ठीक है, इक्वलेंट नहीं होते एक दूसरे के। फिर यहाँ पर हमने कहा कि व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, तो एक हमने पढ़ा कि दैट इज़ बेसिकली म्यूकस, दूसरा हमने पढ़ा कि देयर इज़ बाइकार्बोनेट दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड दैट इज़ देयर इन द पैंक्रियाटिक जूस एंड देयर ऑल्सो इन द बाइल। फिर उन्होंने कहा कि जब आपका एक्सेस एसिड आ जाता है ड्यूडेनम में तो वो आपकी एम्प्टीइंग ऑफ द स्टमक को इनहिबिट कर देता है, इट इनहिबिट्स gastric secretion and peristalsis in the stomach, ठीक है ना, it inhibits gastric emptying। and 4 कि जब when a lot of acid enters into the stomach, a hormone secretin is produced that causes additional bicarbonate secretion from the pancreas and from the bile, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पहले हम लोगों ने बेसिक कॉज पढ़ा एंड देन वी स्टडीड अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेप्टिक अल्सर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक कॉजेज एंड मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगी। इन्होंने बताया दैट इज़ सबसे पहले क्या है, दैट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय हेलिकोबैक्टर पाइलरी, ठीक है, वो हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस एसिड सिक्रीशन, एक्सेस एसिड एंड अ पेप्सिन सिक्रीशन, वो चीज़, ठीक है, यहाँ पे देखो। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज़ एन एबनॉर्मल और डिक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, इट कैन बी हेरिडिटरी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल एंड एस्प्रीन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड एस्प्रीन बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, दीज आर द फैक्टर्स दैट प्री डिस्पोज, ठीक है, देयर इज़ अ हेरिडिटरी टेंडेंसी समटाइम्स, ठीक है, and there is a diminished mucus secretion and it can be bacterial infection by the Helicobacter pylori and that is the most common cause। समझ रहे हो आप, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलरी क्या करता है, इट कैन पेनिट्रेट द म्यूकोजल बैरियर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फिजिकल कैपेबिलिटी टू burrow through the barrier and by releasing ammonium that liquefies the barrier and stimulates the secretion of hydrochloric acid। तो इट क्रिएट्स burrows inside the gastric barrier, ठीक है, और ये रिलीज़ करता है अमोनियम को जो कि लिक्विफाई करेगा बैरियर को और स्टिमुलेट करेगा secretion of the hydrochloric acid। So the strong acidic digestive juices of the stomach secretions can then penetrate into the underlying epithelium and they can literally digest the gastrointestinal wall leading to peptic ulcer। समझ रहे हो? तो what are the specific causes? That is bacterial infection by the Helicobacter pylori, excess acid in the pepsin secretion, जैसे कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करे कि that is causing the and stimulating the secretion of hydrochloric acid। So the excess acid or excess pepsin secretion, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ देयर इज़ एन एबनॉर्मल एंड डिक्रीज्ड और डिमिनिश्ड म्यूकस सिक्रीशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ हेरिडिटरी टेंडेंसी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल, एस्प्रीन एंड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, देर आर सम साइकोजेनिक फैक्टर्स, यहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट साइकोजेनिक फैक्टर्स यानी कि दैट कॉज स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, इंक्रीज्ड वेगल स्टिमुलेशन, अगर आपकी वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज्ड है तो that can also lead to increased excess acid secretion and increased sympathetic stimulation because it inhibits the Brunner glands of the duodenum। समझ रहे हो? तो क्या क्या फैक्टर्स हमने पढ़े, सबसे पहले being the Helicobacter pylori, the number 2 the excess acid and the excess pepsin secretion, the number 3 being decreased mucus secretion, diminished mucus secretion, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि द इंजेक्शन ऑफ योर अल्कोहल, एस्प्रीन, ठीक है, ये जो उन्होंने कहा था कि एनएसएड्स अगर आप ले रहे हो दे हैं, ठीक है। इसके अलावा हेरिडिटरी टेंडेंसी, ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम हेरिडिटरी टेंडेंसी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ साइकोजेनिक फैक्टर्स। एक मशहूर क्या कहा जाता है, करी, हरी एंड वरी,
दैट लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि साइकोजेनिक फैक्टर्स यानी एनजाइटी एक्सेट्रा, फिर उसके बाद इंक्रीज्ड वेगल स्टिमुलेशन, अगर आपकी वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज्ड है तो दैट कैन कॉज एक्सेस एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये आपके ब्रूनर्स ग्लैंड्स को इनहिबिट करता है, यानी कि वो म्यूकस इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और म्यूकस सिक्रीशन इज डिमिनिश्ड। वेगल स्टिमुलेशन क्या करता है, एसिड को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस एसिड सिक्रीशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द क्योर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड देन देर आर एंटी एसिड्स, administration of acid suppressant drug, for example ranitidine, which is antihistaminic agent that blocks the stimulatory effect of histamine on the gastric gland, histamine 2 receptors, thus reducing gastric secretion by 70 to 80%. So these are the anti-acids. फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स, जैसे हमने बताया ना कि हेलिकोबैक्टर पायलरी की वजह से हो सकता है, सो दैट थिंग। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा ये रानिटिडीन, इसके अलावा सिमिटिडीन इज़ ऑल्सो मेडिसिन, जो कि बेसिकली हिस्टाडीन जो है दैट स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रीशन। सो बेसिकली हिस्टाडीन ब्लॉकर्स भी एंटी हिस्टामीन्स, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा द अदर कंडीशंस दैट प्री डिस्पोज लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, एस्पिरिन, वो कर लें। इसके अलावा सप्लाई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहाँ पे हमने कहा था कि parasympathetic stimulation to the gastric glands, because sympathetic stimulation inhibits mucus secretion from the Brunner's glands. और इसके अलावा cutting the vagal nerves, that is called vagotomy, or the removal of the ulcerated portion of the stomach, gastrectomy also called as gastrectomy. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है। ठीक है कि you have to, क्योंकि वेगल नर्व्स जो है, वेगल स्टिमुलेशन दैट वाज कॉजिंग एक्सेस एसिड सिक्रीशन, सो यू समटाइम्स हैव टू डू वेगोटमी और द रिमूवल ऑफ द अल्सरेटेड पोर्शन ऑफ द स्टमक। ठीक हो गया।